Dear students, welcome back with your instructor Ali Raza Lagari regarding your cyber law subject. Dear students, we have discussed the cyber crime, what is the cyber crime, traditional crime. Also in the previous lecture we discussed regarding the different types of the crimes. इस क्राइम का जो मेन कंट्रोल करने के लिए कोई टूल तो होना चाहिए. As a one tool regarding कंट्रोलिंग ऑफ द साइबर क्राइम. जब साइबर क्राइम है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो हर गवर्नमेंट, हर स्टेट की ड्यूटी है कि जब भी कोई क्राइम कमिट हो, जब भी कोई ऐसा एक्ट इलीगल हो, उसके लिए कोई कानून हो, दैट इज कॉल्ड, उसके लिए कोई ऐसा कानून, ऐसा टूल हो जिसको क्राइम को कंट्रोल किया जाए, उसके लिए कोई सज़ा, पनिशमेंट मुकर्रर किया जाता है ताकि उस क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटी, साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जाए. तो जब भी कोई एक्ट होगा तो वो उसके लिए एक टूल बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड द साइबर लॉ. सो इन दिस वीडियो लेक्चर, वी विल डिस्कस अबाउट द साइबर लॉ, overview of the cyber law. Now there are the two key words, cyber and the law. What is cyber? Cyber we are already discussed in the previous lecture. Cyber including under the definition such like a computer, digital devices, internet, extra, that is called the cyber, and the law. Now we discuss about the law. What is the law and how the making a law, and law को बनाने वाले कौन हैं और law बनता कैसे है और law जो है वो है क्या, कहाँ implement होगा. तो इसलिए now in this video we discuss regarding the cyber law. First key words is law. What is the law? Some jurists of our department, our law field, that is called the Salmon, John Austin, John Holland. These are the famous jurists of the law. According to the John Salmon, what is the law? John Salmon defined the law is a set of the fundamental principles which are recognized and applied by the state in the administration of the justice. Wow, this is the very golden, very significant, very important definition given by the John Salmon, which means law is a set of the fundamental principle. यानी कि जो कानून है वो बुनियादी असूलों का मजमुआ है जो अप्लाई भी और मेक रिकग्नाइज्ड भी और अप्लाई करने वाला भी, रिकग्नाइज कराने वाला भी स्टेट है. और वो स्टेट अप्लाइड और रिकग्नाइज्ड कहाँ पे करता है? इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस. जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए लॉ का यूज किया जाता है. Definition: law is the set of the fundamental principles which are recognized and applied by the state. Law एक आम इंसान नहीं बनाता, एक competent authority बनाया जाता है और उसको अप्लाई करने वाला भी competent authority है, रिकग्नाइज करवाने वाला भी competent authority है, that is called the state. और कहाँ पे रिकग्नाइज होता, कहाँ पे एप्लीकेशन होता है? इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस. यानी कि बुनियादी असूलों का ऐसा मजमुआ जो स्टेट अप्लाई भी कराए, रिकग्नाइज भी कराए इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, उसको कानून कहा जाता है, लॉ कहा जाता है. नाउ द डेफिनेशन ऑफ द जॉन ऑस्टिन regarding the definition of the law. The John Austin defined the term law. John Salmon, according to this John Salmon given the clear definition of the legal term, the law. Law means, according to John Salmon, law is the command of the sovereign. Law is the command of the sovereign which is recognized and applied by the imposed of the section. Now the definition of the Austin means, Austin ने ये डेफिनेशन क्लियर कर दिया है कि ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ऑस्टिन ने लॉ के बारे में कहा कि ये जो है वो कमांड ऑफ द सोवरियन है.
अब ये कमांड ऑफ द सोवरियन का मतलब क्या होता है? कमांड ऑफ द सोवरियन का मतलब होता है कि ये हुक्म है, ये ऑर्डर है सोवरियन अथॉरिटी का. नाउ द टर्म यूज इज द सोवरियन. व्हाट इज द सोवरियन? We want to clear regarding the sovereign. According to the UK Constitution, sovereignty belongs to the parliament. यानी कि पार्लियामेंट के पास ये सोवरियन है, ये अथॉरिटी है. पार्लियामेंट सोवरियन बॉडी है, खुद मुख्तियार है, जो चाहे मर्जी कानून बना सकता है. बट वी आर बीइंग अ मुस्लिम, एज अ मुस्लिम्स जो है वो सोवरेनिटी जो है वो बिलोंग्स टू दी अल्लाह अलमाइटी है. अल्लाह अलमाइटी है. और हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो पावर्स हैं, ये जो अथॉरिटीज़ हैं, ये जो सिस्टम है, ये सारा अल्लाह अलमाइटी के पास ही है. हम पे वो रिकग्नाइज्ड अल्लाह अलमाइटी ने किया. अल्लाह अलमाइटी ने हमें कैपेबल किया इस चीज़ को कि ये कानून आप बनाए, बट अकॉर्डिंग टू द इंजेक्शंस ऑफ द होली कुरान एंड द सुन्ना. हॉलैंड ने लॉ को डेफिनेशन डिफाइंड किया है. कमांड, नाउ ऑस्टन की इंग्रेडिएंट्स है, कमांड है, सोवरियन अथॉरिटी का वो कमांड हो और वो पनिशमेंट मुकर्रर किया गया हो. क्या मतलब कि जॉन ऑस्टन ने एक रिटन स्टेटमेंट में बता दिया कि जनाब वो कानून नहीं होगा जिस कानून में सजा मुकर्रर ना किया गया हो. वो कानून, वो फंडामेंटल असूल जो एक कमांड हो, वो किसी सोवरियन अथॉरिटी से हो. ये तीन इंग्रेडिएंट्स जो है, दीज थ्री इंग्रेडिएंट्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द जॉन ऑस्टन रिगार्डिंग द लॉ. नंबर 1 इज द कमांड, कि वो an order and a direction of the competent authority of the sovereign. Sovereign is the competent authority which is making of the law. And third, इन दोनों में लॉ के जो लॉ है उसमें कोई पनिशमेंट मुकर्रर किया हो. यानी कि अगर किसी ने, इफ एनी वन बॉडी, एनी पर्सन वायलेट्स इन्फ्रिंजमेंट द लॉ, he will be should be punished under the law. According to the Holland, हॉलैंड ने क्या कहा? हॉलैंड की जो डेफिनेशन है उसने वो कहा कि इज द सेट ऑफ द प्रिंसिपल्स, जो सेट ऑफ द प्रिंसिपल्स है विच इज अप्लाइड इन द सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. यानी कि ये एक ऐसा बुनियादी असूलों का मजमूआ है जो सोसाइटी में अप्लाइड किया जाता है ताकि वेलफेयर ऑफ दी सोसाइटी हो. ये लॉ की डेफिनेशन है. अगर अब नाउ वी मेक द दीज डेफिनेशन, एड द दीज डेफिनेशन टू द साइबर, इज कॉल्ड द साइबर लॉ. विच मीन्स अगर सालमन की डेफिनेशन को देखें कि एज अ सेट ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, अगर इसको देखें तो साइबर लॉ की डेफिनेशन बनेगा अ सेट ऑफ द फंडामेंटल principles which are recognized and applied by the state in the administration of the justice in the lens of the computer, digital devices, internet. When any rules, any regulations or fundamental principles which are relating to the electronic devices, electronic transaction, cyber security, digital evidence and impose the penalties for the technology which are related to the crime is called the cyber law. Now the definition of the Black's Law Dictionary regarding the cyber law. The definition, according to Black's Law Dictionary, cyber law is a branch of the law. कि साइबर लॉ जो है वो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द लॉ डीलिंग विद द इंटरनेट, कंप्यूटर and the technology relating to the legal issues including intellectual property, privacy and cyber crime. Black's Law Dictionary ने कहा है कि ये जो डेफिनेशन है साइबर क्राइम का, कि साइबर क्राइम एक ऐसा लॉ है, ऐसे कानून है जो बुनियादी असूल, जो रेगुलेशंस, जो इसके जर्नल रूल्स ये बनाए जाएं इंटरनेट के अगेंस्ट में, इंटरनेट डिजिटल डिवाइसेस के बारे में, रिगार्डिंग द इंटरनेट, रिगार्डिंग द डिवाइसेस सच एज कॉल्ड द साइबर law. Ingredients of the cyber law according to the
Black's Law Dictionary, according to the some jurists which are defined the cyber ingredients law, first of all is the digital medium. The internet and the electronic devices are central to the application of the cyber law. What is the meaning of this statement? Which means internet or the electronic devices plays a significant role under the cyber law. Second is the legal violation. Cyber law addressing a violation such as a hacking, phishing and fraud. What is meaning of this statement? Means कि जो साइबर लॉ है वो ऐसे बुनियादी असूलों में मुज्तबा है, ऐसे बुनियादी असूलों में इंक्लूड है, ऐसे जनरल बुनियादी असूल जो स्टेट ने दिया है, ऐसे बुनियादी असूल जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दिया हुआ है, ऐसे असूल जो एड्रेस कर रहे हो, किसको एड्रेस कर रहे हो वो बुनियादी असूल, वो बुनियादी जो असूल्स हैं वायलेशन के हैं, सच एज ए हैकिंग, इंटरनेट की फिशिंग, ऐसे जो है वो इंग्रेडिएंट्स कहे जाते हैं अंडर द साइबर लॉ. थर्ड इज द ज्यूरिस्डिक्शन. अब व्हाट इज द ज्यूरिस्डिक्शन? ज्यूरिस्डिक्शन मींस एक्सटेंड, कि ये जो है साइबर लॉ कहाँ कहाँ यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइबर लॉ ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो सेक्शन 1 है एवरी लॉ में, वहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया होता है कि जनाब दिस लॉ एक्सटेंड टू द होल ऑफ द पाकिस्तान, कि वो पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल होगा. और ये साइबर लॉ ज्यूरिस्डिक्शन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल लेवल में भी इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है. कोई हैकर बैठा हुआ है यूके में, वो पाकिस्तान की हैक आईडी कर रहा है, तो इंटरनेशनली लॉ के अकॉर्डिंगली वो भी साइबर क्राइम के ज्यूरिस्डिक्शन में आ जाता है. तो ज्यूरिस्डिक्शन इसका इन दी ज्यूरिस्डिक्शन अंडर द लोकल लेवल आल्सो इंटरनेशनल लेवल. नाउ फोर्थ इज द पनिशमेंट, कि उस मैंने बात किया था जॉन ऑस्टिन का, कि जॉन ऑस्टिन ने कहा था कि पनिशमेंट सजा मुकर्रर लाजिम हो. किसी कानून के लिए वो कानून ही नहीं है, वो कमांड ही नहीं है, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ही नहीं है, वो जनरल प्रिंसिपल ही नहीं है जो स्टेट हमें रिकॉग्नाइज तो करे, स्टेट अप्लाई तो करवाए, मगर उसमें पनिशमेंट मुकर्रर ना हो. तो जॉन साल्मन ने कहा पनिशमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है साइबर लॉ का. कानून का जो है पनिशमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, और साइबर लॉ में भी पनिशमेंट इंपोज किए जाए हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे. विक्टिम इंपैक्ट, ये जरूरी है कि जनाब जब भी कोई लॉ वायलेट होगा उसमें विक्टिम इंपैक्ट हो, विक्टिम को कोई लॉस हो. अगर विक्टिम लॉस नहीं है तो वो आपका जो है वो साइबर लॉ इंपोज भी नहीं किया जाएगा. दैट विच ऑर्गेनाइजर, कोई डाटा उसका लॉस किया गया हो, उसकी आइडेंटिफिकेशन की लॉस किया गया हो, और फाइनेंशियल लॉसेस किया गया हो. अब ऑब्जेक्टिव जो है वो वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर इंशाल्लाह ताला. अब नाउ ओवरव्यू ऑफ रिगार्डिंग द साइबर लॉ and cyber. What is the cyber? Cyber including the digital network or internet websites or anything. What is the law? Law is the set of the fundamental principles which are recognized and applied by the state. जब कोई बुनियादी असूल्स बनाए जाएंगे वो बुनियादी असूल्स अप्लाई करने वाला भी स्टेट होगा और रिकग्नाइज करने वाला भी स्टेट होगा, इन्फोर्स करवाने वाला भी स्टेट होगा, बनाने वाला भी स्टेट होगा. वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए बनाया जाएगा. क्यों, किसके बारे में? इन दी लेंस ऑफ दी रिगार्डिंग दी, किसके बारे में? इंटरनेट के बारे में, डिजिटल डिवाइसेस के बारे में, वेबसाइट्स के बारे में, कंप्यूटर के बारे में. जो कानून बनाए जाएंगे, जो उनकी पनिशमेंट्स मुकर्रर किए जाएंगे रिगार्डिंग द लॉसेस ऑफ द डाटा, रिगार्डिंग द हैक ऑफ द डाटा, रिगार्डिंग योर प्राइवेसी theft, regarding your financial losses through the internet devices or modern devices or any illegal websites or phishing. तो इनके लिए कोई laws, rules, regulations set किए जाएंगे through by the competent authority, command by the competent authority, given by the state, also applied by the state, is called the cyber law.
Now we conclude this on the time. Inshallah Ta'ala, we will meet on the next lecture regarding the objective, scope, nature of the cyber law. Thank you so much.